صدیوں پرانی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو کہ ہر طرح کی دولت، طاقت اور شان و شوکت کے باوجود بے سکونی کی زندگی گزار رہا تھا۔ محل کی دیواریں اونچی تھیں، خزانوں میں سونے کے ڈھیر تھے، لیکن دل کو سکون میسر نہ تھا۔ کئی علماء اور دانشوروں کو بلایا گیا، مگر کسی کا مشورہ اس کے دل کی بے چینی ختم نہ کر سکا۔ ایک رات جب بادشاہ نیند سے اچانک بیدار ہوا تو وہ محل کے باغ میں ٹہلنے لگا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کرنے لگا، یا خدا، مجھے بتا کہ میری بے چینی کا علاج کہاں ہے۔ اسی وقت ایک خادم نے اطلاع دی کہ محل کے قریب ایک فقیر بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ اس کے پاس بادشاہ کے سوال کا جواب ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ ایک فقیر کیسے جان سکتا ہے جو بڑے بڑے علماء نہ سمجھ سکے، لیکن بے سکون دل نے اسے مجبور کر دیا کہ فقیر کو محل میں بلایا جائے۔ فقیر کو محل میں لایا گیا۔ اس کی حالت سادہ تھی، میلے کچیلے کپڑے تھے، لیکن چہرہ پر نور تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میرے پاس ایک جواب ہے جو تمہاری بے سکونی سے نجات دلا سکتا ہے۔ اگر تم سچ میں سننا چاہتے ہو تو کل مجھے تنہا باغ میں بلانا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور فقیر واپس چلا گیا۔ اس رات بادشاہ کو سکون کی جھلک محسوس ہوئی۔ دل میں ایک عجیب سی امید جاگی کہ شاید کل اس کی زندگی بدل جائے گی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو بادشاہ بے صبری سے فقیر کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہو گیا۔ محل کے باغ میں فقیر پہلے سے موجود تھا اور وہ ایک درخت کے نیچے آرام دہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا اور اس کی آنکھوں میں سکون جھلک رہا تھا۔ بادشاہ فقیر کے قریب گیا اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، دانا شخص، مجھے بتاؤ کہ میرے دل کا سکون کہاں ہے۔ فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، بادشاہ سلامت، سکون کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بے سکونی کہاں سے آتی ہے۔ تم بتاؤ، کیا تمہارے دل میں کبھی کسی کی مدد کرنے، کسی کی تکلیف بانٹنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے؟ بادشاہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، میں نے اپنی پوری زندگی اپنی طاقت، دولت اور شان کے بارے میں سوچا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کسی کی مدد کرنا بھی سکون کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ فقیر مسکرایا اور بولا، یہی تمہاری بے سکونی کی وجہ ہے۔ تم نے اپنی دولت کو اپنی ذات تک محدود رکھا ہے، حالانکہ اصل سکون دوسروں کی خدمت میں چھپا ہے۔ بادشاہ نے غور سے فقیر کی باتیں سنی، لیکن پھر اس نے سوال کیا، کیا دوسروں کی مدد کرنے سے ہی مجھے سکون مل سکتا ہے؟ فقیر نے اسے کہانی سنائی کہ ایک مرتبہ ایک مسافر کسی بستی سے گزر رہا تھا۔ وہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مسافر نے اپنی روٹی نکال کر بستی کے سب سے کمزور شخص کو دے دی۔ اگلے دن بستی کے لوگ اس کے جذبے سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستی خوشحال ہو گئی اور مسافر کو ایک انمول سکون ملا۔ بادشاہ کو یہ بات دل سے محسوس ہوئی، لیکن اس کا ذہن ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ کہنا سب آسان ہے، لیکن میں کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی کارگر ہوگا؟ فقیر نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو آؤ میرے ساتھ۔ آج تم اپنا تاج اور شاہانہ لباس اتار کر میرے ساتھ چلو اور لوگوں کے بیچ رہ کر ان کی مشکلات کو دیکھو۔ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ سکون کہاں ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن بادشاہ نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس تجربے سے گزرے گا۔ اس نے اگلی صبح اس فقیر کے ساتھ سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ نے صبح شاہی لباس اتار دیا اور فقیر کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح قریبی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں پہاڑیاں، کھیت اور کچی سڑکیں دیکھ کر بادشاہ حیران تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار محل کی چاردیواری سے باہر نکل کر عام لوگوں کے درمیان آیا تھا۔ فقیر نے اسے گاؤں کے ایک چھوٹے سے چوک پر لا کر کہا، یہاں بیٹھو اور ان لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کرو۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک بڑھئی لکڑی کا کام کر رہا تھا، ایک کسان دھول مٹی میں اپنے بیل کے ساتھ زمین جوت رہا تھا، اور ایک ماں اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی تھی۔ فقیر نے کہا، یہ لوگ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ ان کے دل میں خواہشات کا بوجھ نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی زندگی میں صرف بڑی چیزوں کو اہمیت دی ہے اور چھوٹے لمحات کی خوشی کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ بادشاہ کو فقیر کی باتیں گہری لگیں، لیکن ابھی بھی وہ مکمل طور پر قائل نہیں ہوا تھا۔
इसी दौरान एक गरीब औरत चौक में आई। इसके कपड़े फटे हुए थे और इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने इसकी तरफ तवज्जो न दी। बादशाह ने फकीर से कहा, ये औरत मदद मांग रही है, लेकिन कोई इसे कुछ नहीं दे रहा। बादशाह ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और औरत को दे दिया। औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने बादशाह को दुआएं दी। बादशाह को दिल में अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। फकीर ने कहा, यह पहला सबक है। बादशाह सलामत। सुकून का पहला राज ये है कि दूसरों की खुशी में खुशी महसूस करो। बादशाह को यह सबक बहुत गहरा लगा। इसके दिल में फकीर की बातों के लिए मजीद तजस्सुस पैदा हो गया। इसने फकीर से कहा, मुझे सिखाओ, मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हूँ। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सफ़र अभी जारी है। बादशाह सलामत। अगले सबक तुम्हें वहाँ मिलेंगे जहाँ लोग अपनी ज़रूरियात को दूसरों से ज़्यादा अहम समझते हैं। तैयार रहो। फकीर और बादशाह अगले दिन एक दूसरे गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में फकीर ने बादशाह से कहा, अब वक्त है कि तुम जान सको कि इंसान के अंदर खुदगर्जी और सखावत का क्या मकाम है। गांव में पहुंचते ही वो दोनों एक बाजार के किनारे बैठ गए। यहाँ शोर शराबा और लोगों की जल्दबाजी देखकर बादशाह हैरान रह गया। फकीर ने बादशाह को एक इम्तिहान देने का फैसला किया। इसने बादशाह को एक थैली दी जिसमें 10 चांदी के सिक्के थे और कहा, ये सिक्के इन लोगों को दे दो जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, लेकिन याद रखो, इनका दिल जांचना आसान नहीं होगा। बादशाह ने बाजार में खड़े कुछ लोगों का मुशाहिदा किया। पहला शख्स एक चमकती हुई पोशाक में मलबूस था, लेकिन इसके चेहरे पर परेशानी थी। वो बादशाह के करीब आया और कहा, मुझे रकम दो, मेरे घर की हालत ख़राब है। बादशाह ने इसके बारे में सोचा, लेकिन फ़कीर ने इशारा किया कि पहले मज़ीद लोगों से मिलो। दूसरा शख्स एक मज़दूर था जिसके हाथ मट्टी से भरे हुए थे। इसने बादशाह से कुछ नहीं मांगा, बल्कि ख़ुद अपनी मज़दूरी में मसरूफ़ रहा। बादशाह ने फ़कीर की तरफ देखा जो मुस्कुराता हुआ सर हिला रहा था। इतनी देर में एक औरत बादशाह के पास आई और कहा, बेटा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, अगर मुमकिन हो तो कुछ मदद करो। बादशाह ने इसे सिक्का दिया। इस औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फ़कीर खामोशी से ये सब देख रहा था। आखिर में बादशाह ने बाकी सिक्के भी ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम कर दिए, लेकिन हर बार दिल से फैसला किया कि कौन ज़्यादा हकदार है। फ़कीर ने बादशाह से कहा, यह दूसरा सबक है, हर किसी की ज़रूरत एक जैसी नहीं होती। अपने दिल की सच्चाई को समझना और सही जगह सखावत करना एक बादशाह के लिए सबसे बड़ा फ़न है। बादशाह ने सर हिलाया और कहा, मैंने आज महसूस किया कि फ़ैसले के लिए दिल और अक्ल दोनों का होना ज़रूरी है। फ़कीर ने कहा, सच कहा, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब तुम्हारा अगला सबक ज़्यादा मुश्किल होगा। फ़कीर और बादशाह अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए, जहाँ फ़कीर ने बादशाह को सिखाने का इरादा किया कि गुरूर और तकब्बुर कैसे इंसान की तरक्की का रास्ता रोकते हैं। रास्ते में उन्होंने एक शानदार बाग देखा। बाग का मालिक एक मगरूर और ख़ुद पसंद शख्स था, जो अपने बाग की तारीफ़ करते हुए फ़कीर और बादशाह के करीब आया और कहा, ये मेरा बाग है, यहाँ जो भी है मेरी मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। फ़कीर ने कहा, क्या आपने खुद उगाया है? मालिक थोड़ा हैरान हुआ और कहा, मैंने अपने नौकरों को हुक्म दिया था, उन्होंने ये बाग बनाया, लेकिन हर चीज़ का मालिक मैं हूँ। फ़कीर ने नरम लहजे में कहा, मालिक होना और मेहनत करना दो अलग बातें हैं, लेकिन क्या आपको यकीन है कि ये बाग मेरा है और मेरे बाद भी मेरे ख़ानदान का होगा? फ़कीर ने खामोशी से एक पौधे की तरफ इशारा किया जो मुरझा रहा था और कहा, ज़िंदगी की हकीकत इस मुरझाए हुए पौधे की तरह है। गुरूर करने वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि वो सब कुछ काबू में रखते हैं, लेकिन कुदरत के फ़ैसले सबसे बड़े होते हैं। बादशाह ये मुकालमा सुनकर गौर व फिक्र में पड़ गया। इसने फ़कीर से कहा, क्या गुरूर सिर्फ़ अमीरों की बीमारी है? फ़कीर ने जवाब दिया, गुरूर सिर्फ़ माल व दौलत का मसला नहीं, ये किसी भी मकाम पर आ सकता है। यहाँ तक कि एक बादशाह भी गुरूर का शिकार हो सकता है, अगर वो ये समझ ले कि वो सबसे बुलंद है और इसे किसी की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं। फ़कीर ने बादशाह को एक और इम्तहान के लिए तैयार किया। उन्होंने एक गांव का दौरा किया जहां एक गरीब बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं, लेकिन वो इन रोटियों में से एक इन दोनों मेहमानों को देना चाहती थी।
बादशाह ने कहा, ये बहुत कमज़ोर है, इसे अपनी रोटियां खुद के लिए रखनी चाहिए। फ़कीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सखावत का इम्तिहान नहीं बल्कि तुम्हारे गुरूर का इम्तिहान है। कभी कभी कमज़ोर लोग भी ताकतवर दिल रखते हैं और ये गुरूर को मिटा देते हैं। बादशाह को एहसास हुआ कि वो बुढ़िया की अजीम रूह को नहीं समझ पाया था। इसने फ़ौरन फ़कीर से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आज तक गुरूर के पर्दे में ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ, लेकिन आज मैंने हकीकी आजिज़ी को पहचाना। फ़कीर ने बादशाह को दुआ दी और कहा, तुम्हारे दिल में जो रोशनी पैदा हो रही है वो तुम्हें कामयाब बादशाह बनाएगी, लेकिन अभी एक आखिरी सबक बाकी है। फ़कीर और बादशाह अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हुए। ये एक पहाड़ की चोटी थी जहाँ से पूरा शहर नज़र आता था। फ़कीर ने कहा, ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है। यहाँ से तुम्हें यह समझना होगा कि एक हुक्मरान का सबसे बड़ा हुनर क्या है। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने एक बुजुर्ग चरवाहे को देखा जो अपनी भेड़ों को चरा रहा था। चरवाहे से पूछा, तुम्हें इतनी मामूली ज़िंदगी में कैसे सुकून मिलता है? चरवाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भेड़ें मेरा ख़ानदान है, मैं इनका ख्याल रखता हूँ और बदले में ये मुझे मोहब्बत और सुकून देती हैं। ये रिश्ता ही मेरी खुशी का राज है। फ़कीर ने बादशाह को चरवाहे की बात पर गौर करने को कहा और कहा कि एक बादशाह और चरवाहे में ज़्यादा फ़र्क नहीं। एक चरवाहा अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है और एक बादशाह अपने लोगों का। लेकिन अगरचे चरवाहा अपने रेवड़ को भूल जाए तो भेड़ें बिखर जाती हैं। इसी तरह अगर एक बादशाह अपने लोगों को नज़रअंदाज करे तो इसकी बादशाहत ख़त्म हो जाती है। बादशाह वही है जो अपने लोगों की खिदमत करे, इनके दुख दर्द को समझे और अपनी ताकत को इनकी भलाई के लिए इस्तेमाल करे। बादशाह ने आजिज़ी से कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार समझा कि बादशाहत का मतलब ताकत नहीं बल्कि खिदमत है। मुझे आप जैसे रहनुमा की रहनुमाई हमेशा याद रहेगी। फ़कीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लोगों के दरमियान जाकर इनकी ज़िंदगियों को देखूं। और इस तरह बादशाह को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला और इसने अपनी ज़िंदगी में हकीकी सुकून को पा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी का असल सुकून दूसरों की खिदमत में छुपा है। अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो इससे हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है और रब्बुल आलमीन हमसे खुश होता है और हमें और नवाजता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी सुकून हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।